Yes, good morning students. Today we discuss the rules for obtaining the image formed by the spherical mirror. Some students are facing the problem on this article how we can form the image, and the examiner asked like that the questions from you. If an object is placed at infinity, then what is the nature of the image and how we can obtain it? We have discussed the different positions of the object, and after that the image is formed. But they have the different position of the ऑब्जेक्ट की हम अलग अलग पोजीशन पे हम उसको प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद कोई कैसी इमेज बनती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये सब कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले रूल्स बताने चाहिए। एक इमेज को ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द image form at the different position of the object. Then firstly we discuss this article rules for obtaining the image. They have the discussion of the rules. The first they have probably four rules, they have probably the four rules to obtain the image. The first rule is that the incident ray of light parallel to the principal axis. This is the first rule. Incident ray of light parallel to the principal axis. Incident ray of light parallel to the principal axis. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्फेरिकल मिरर लिखेंगे। हाउ वी कैन obtain the rule and how we can understand the rule for the spherical mirror. You already know that spherical mirror have the two types, एक होता है convex, एक होता है concave. Then we have firstly we discuss the concave. concave क्या होता है आपको पहले से ही पता है। concave क्या होता है, आउटर साइड होती है सिल्वर होती है, मैं ऐसे कर रहा हूँ सिल्वर, and after that we make a principal axis on this one, and you already know that the middle point of the principal axis is known as the pole. So हम pole बोलते हैं। Then we have discussed that the positions incident ray of light parallel to the principal axis. और ये लाइन जो कि यहाँ पर एक पॉइंट बनता है फोकस, यहाँ पर होता है सेंटर C, और this is from P to C. From P to C, this is the radius, ये principal focus होता है। उसके बाद if we extend this line further, अगर हम इसको दोबारा एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन होती है लाइन joining the pole and center of curvature, इसको हम principal axis बोलते हैं, and extend further। अब ये जो पूरी लाइन है इस लाइन को principal axis बोलते हैं। अब पहला रूल में फर्स्ट रूल में आपने क्या करना है, एक लाइन फॉलो करनी है, मींस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, if the light parallel to the principal axis. अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ principal axis की parallel light नहीं है, then what will be happen, this light is strike with reflecting surface. आपको ये बात पहले से पता है, मैं रेड बना रहा हूँ, this red portion is the reflected, ये reflected है। तो पहला रूल ये है, the rule first rule is that when the light parallel to the principal axis, तो अगर principal axis से पास होगी then this light will always pass from the principal focus. ये पहला रूल है for the concave, for the convex, दोनों में सेम रहेगी situations. The light will be pass out from the principal axis. तो मैं अब इस लाइन को पूरा डार्क कर देता हूँ, then you can say this one is incident light and light falling to the principal focus. यहाँ से पास हो जाएगी, ये इसका फर्स्ट रूल है। अब फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा आपको। अगर कभी भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो आपने क्या करना है, उस लाइट को कहाँ से पास कराना है, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल नंबर 2। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, रूल नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। और
is also discussion on a concave mirror, वो भी हम concave mirror में डिस्कस करेंगे। अब concave mirror में सबसे पहले आपकी जो पॉइंट नंबर 2 है, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और पास होगी। रूल नंबर 2, द रूल नंबर 2 इज दैट व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रूल नंबर 2 क्या है, इफ द लाइट, यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट है, लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, when the light passing through the principal focus then this light becomes parallel to the principal axis, ये रूल नंबर 2 है। if the light passing incident ray of light passing through the principal focus से पास हो गई है तो उसके बाद में ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाएगी। फर्स्ट रूल में क्या था, दिस इज द फर्स्ट रूल में क्या था, लाइट पैरेलल हुई तो प्रिंसिपल फोकस से पास, ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 2। Now we are going to discuss the rule number 3. If the light is passing through the center of curvature of, ये rule number 2 था। Now we are going to discuss the rule number 3. Rule number 3 के लिए वही सेम आपने ये क्या हमारा प्रिंसिपल फोकस। Rule number 3 is that if the light passing through the center of curvature, if the light passing through the center of curvature and the same light bounce back in same path, इसी लाइट ऐसे पास जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी सेम पाथ में वापस जाएगी, ये रूल नंबर 3 है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या करता है, रूल नंबर 4 इज दैट दिस इज द रूल नंबर 3। नाउ वी आर डिस्कस द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज दैट when the light fall at the center is pole of this one, then this light is reflected and you can say this is the angle I and this is the angle I. ये rule number 4 है। This one is the discussion of the rule for obtaining the image by a spherical mirror. But before the discussion of these rules, I already told you that they have the spherical mirror are the two type, one is the convex, one is the concave। कन्वेक्स क्या होता है, कंकेव क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा। कंकेव में आउटर साइड जो होती है सिल्वर होती है, इनर साइड मैंने रेड कलर की क्लियरली सी है आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट फॉल हुई तो बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट हुई। फोर का अगर हमें इमेज ड्रॉ करनी है इसके लिए हमें 4 रूल करना चाहिए। फर्स्ट पहले मैं बता रहा हूँ और दोबारा मैं इसी डायग्राम को 4 रूल से मैंने एक करके बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 रूल इन वन डायग्राम। 4 रूल में एक डायग्राम में बना रहा हूँ। पहला फर्स्ट रूल क्या था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट दैट व्हाट विल हैपन, लाइट यहाँ से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। तो ये मैंने लिख दिया रूल फर्स्ट। रूल नंबर 2 क्या था, if the light passing through the principal focus then this light becomes parallel to the principal axis। rule number 3 क्या था, if the light passing through the center of curvature this light will bounce back in same medium। rule number 4 क्या था, if the light falling over at the pole then this light is going to reflect angle I over angle R। ये 4 रूल है। ये चारों रूल की डिस्कशन करने के बाद now we are going to discuss the image, how we can form the image using this rule। इन 4 के 4 रूल्स को यूज करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि इमेज कैसे ड्रॉ की जाएगी। नाउ आई थिंक एवरीवन हैव क्लियर हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट आर्टिकल, image formation by a concave mirror। Now we are writing the next article, image formation by a concave mirror। जो मैंने आपको रूल्स कराए हैं अभी 4, वो रूल्स मैंने सिर्फ आपको कन्वेव में कराए हैं। अब आपको चारों समझ में आ गए देन यू कैन गो इन कन्वेक्स, इट्स वेरी इजी। वहाँ बहुत आसान है तो आप कन्वेक्स कर सकते हो। सेम वे वी आर डिस्कस द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर।
अब हम पहला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, you can write here first one, number one is that when an object, you can write here, you can also write here, when an object is at infinity, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे तब हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज, हम कैसे इमेज को फॉर्म करेंगे, ये हमने डिस्कस करना है इसमें। तो फर्स्टली द हेडिंग इज दैट इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट किस पर रखा है, इन्फिनिटी। देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट एंड हाउ यू कैन also indicate the image formation. When we draw, you already know that we have discussion in a concave mirror, concave mirror में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने पोल बना लिया। पोल बनाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी भी इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी मीन्स हम ये कैसे करेंगे, इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम बता दिया ए बी। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी मीन्स आपको जो है हमें ये पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है। देन व्हाट विल बी हैपन, द लाइट गोज फ्रॉम, लाइट यहाँ से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये फोकस होता है, ये पॉइंट से होता है। तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, आपको अभी फर्स्ट रूल आपने डिस्कस किया था, अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो तो दिस लाइट पासिंग टू द प्रिंसिपल फोकस, ये फर्स्ट रूल है। In same way, you can also draw this light, the light parallel to the principal axis, and this light is passing through this one. तो जो मैंने सर्कल किया है this part, at this part the light is intersect each other. Then you can see this object is placed. The image is formed at the principal focus. तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अब एग्जाम्पल आपसे ही पूछ लिया जाता है इमेज कैसे बनेगी इसमें। देन कैसे इमेज इज रियल एंड इमेजिनरी। इस केस में आपकी इमेज का जो साइज होएगा देखो यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, साइज बहुत छोटा होएगा एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंडली इमेज इज रियल। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा। और आपने ये बात याद रखनी, जहाँ पर भी इमेज रियल बनेगी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये पहला केस था। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन्फिनिटी, एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी देन ड्रॉ द डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन। देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एग्जामिनर आल्सो आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देन योर आंसर इज दैट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये इसका आंसर होगा। ये इसका एक पार्ट था। नाउ वी आर डिस्कस द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज दैट, ये पहला पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। सभी पार्ट आप कर सकते हो, बट अगर आपको रूल्स को होना चाहिए। बहुत इजी है, जिसको समझ में आए तो बहुत इजी है, जिसको नहीं समझ में आए बहुत मुश्किल है। और ये दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। Because the examiner also asked the numerical problem from this chapter. We already discussed the mirror formula हम कर चुके हैं। तो now the number 2, when object is beyond the center of curvature of the concave mirror। मैं सीधा बना रहा हूँ डायग्राम। अगर आपने सेकंड पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नंबर 2 क्या है वो मैं आपको बता दूँगा अभी। यहाँ पर आपने एक वही से concave mirror बनाना है। ये मिरर में से आप कोई से एक पोल बना लो यहाँ पर फोकस, ये हो गया सेंटर। अब नंबर 2 की पोजीशन ये है। नंबर 2 केस में आपने डिस्कस करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये पॉइंट नंबर 2 है। मैंने यहाँ पर वर्डिंग में लिखा, टाइम वेस्ट होता है। मैं यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम placed
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मैंने लिख पढ़ी है, देन यू कैन से हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज फ्रॉम दिस आर्टिकल, देन यू कैन से दिस इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी। अब आप बताओगे कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, तो वहाँ से वो सेम फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइट यहाँ से गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप ये बात बोलोगे इसमें ये फर्स्ट रूल अप्लाई होता है। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल इज दैट द लाइट इज पासिंग थ्रू द when the light parallel to the principal axis, the light passing through the principal focus, ये फर्स्ट रूल था। और इसके बाद हम इसमें ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, रूल नंबर 3 भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी कैन से the you can also draw light from this object is also passing through the center of curvature, then the light goes from center of curvature and bounce back in same way। तो ये पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then you can say that image is formed at the this point, यहाँ पर इमेज बनी है, then we can write a dash b dash। अब ये जो इमेज थी इसकी उल्टी बनी है, तो यहाँ पर भी इमेज का रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इससे जो छोटी होगी। ये हमने सेकंड पोजीशन की है। वी हैव डिस्कस द अदर पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस लाइक दैट। हमने जो अभी डिस्कस की है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटी पे, नंबर 2 हमने किस पे डिस्कस किया है, नंबर 2 हमने डिस्कस किया है अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनी वन केस, मीन्स टोटली देयर आर 6 केस। इसमें आपके पास 6 केस हैं, 6 केस में से 2 मैंने करा चुका हूँ, एक और मैं करा देता हूँ, एंड यू कैन आल्सो ट्राई द अनदर केस, दूसरे केस आप ट्राई कर सकते हो, तो वो आप कोशिश करना हम कैसे 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 करेंगे। देन द थर्ड केस इज दैट, थर्ड केस में करा देता हूँ, थर्ड केस हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आप ट्राई करोगे कौन कौन से केस आप ट्राई करने हैं। उसके बाद 3 केस रह जाएंगे, बहुत आसान है, यू कैन आल्सो ट्राई द अनदर केसेस एंड इफ यू हैव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन डिस्कस विद मी। एंड दिस वन इज द कनकेव मिरर, सेम और इस पॉइंट ऑफ फोकस, दिस इज द सी। नाउ द थर्ड केस इज दैट, थर्ड केस we also discussing concave mirror as you can see on the screen। The third case is that when object is placed at the center of curvature of a concave mirror। अगर मैं आपसे बोलूँ आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, देन हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट यहाँ से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से पास जाएगी, ये है सेम। और ऐसे प्रिंसिपल फोकस से गई फिर यहाँ से पास होगी, तो आपके पास ये सेम पोर्शन मिल जाएगा। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, थोड़ा पहला केस क्या था, लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेकंड केस क्या था हमारे पास, सेकंड केस इज दैट व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन दिस लाइट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देन यू कैन से दिस इमेज इज ड्रॉ एंड देन यू कैन राइट हियर द ए बी, उल्टे क्यों नहीं जाएगा, ए डैश बी डैश। सेम यू कैन आल्सो से सेम इमेज इन रो, इक्वल और साइज होएगा और इक्वल ही पोजीशन होएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा थर्ड केस। थर्ड केस में दोबारा बोलता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए तो सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। आल्सो द साइज ऑफ द इमेज इज सेम as the size of the object and the nature of the image is always उल्टी बनी, उल्टी इमेज है, और then you can say this is the real and this is the inverted। ये 3 केस मैंने कराए हैं। अदर दूसरे केस आप डिस्कस कर सकते हो
कन्वेक्स का केस भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। फर्दर अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विद मी एंड वी आल्सो प्रिपेयर द अनदर वीडियो फॉर यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई थिंक जो मैंने करा दिया इसके बाद अगर आप कोर्स करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी। एंड उसके बाद हम जो आगे हमने मिरर फार्मूला कर लिया है, मैग्नीफिकेशन कर लिया है, मिरर की हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए और नाउ आफ्टर दैट वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, रिफ्रैक्शन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आल्सो प्रिपेयर द वीडियो फॉर दैट एंड यू कैन आल्सो सी दिस वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन आल्सो लर्न द थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको वीडियो को लाइक करो, देख लो। कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आल्सो डिस्कस विद मी। और जो भी जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ और वीडियो बनाने के बाद भी चैनल पर डाल देता हूँ। तो आफ्टर दैट दे गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। जो भी चैनल पे मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइबर नहीं किया वो कर लो, क्योंकि जैसे जैसे कुछ स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम थी, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सबकी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था सर हमें ईमेल फॉर्म करनी नहीं आई, वो हमें नहीं पता सर कैसे फॉर्म किए, तो वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। यू कैन आल्सो ट्राई फ्रॉम योर बुक फॉर जो अदर हैं। और दूसरों को भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं चैनल पर वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो जिसको नहीं प्रॉब्लम थी उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो हम डिस्कस किया है हमने। अगर किसी ने सब्सक्राइबर किया है तो उसको पता लग जाएगा सर ने आज ये वीडियो डाली है। देन यू कैन सी द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन द चैनल एंड वी हैव डिस्कस द अदर प्रॉब्लम्स फॉर यू। आई होप यू आल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो वी आल्सो डिस्कसिंग द डिफरेंट थिंग्स एंड द थिंग्स इज दैट रिफ्रैक्शंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और याद के लिए ये हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द रिफ्रैक्शन। वी आर डिस्कस द थिंग्स फॉर द रिफ्रैक्शंस क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है एंड व्हाई वी यूज दिस थिंग्स, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।